مالی تعاون جو ہے آپ کے ساتھ پوری کمیونٹی بغیر شیعہ سنی کے اس کے جو فرق کے وہ لوگ کر رہے ہیں، آپ کو امید ہے؟ جو یہ سینٹر پے آف ہوا ہے اس میں تو تعاون کیا ہے تو تبھی پے آف ہوا ہے. اپنے گاؤں سے تو میں پیسہ نہیں لایا ہوں، اس میں میں نے بھی ڈونیشن دیا ہے بحمد اللہ، اور میرے بھائی بہنوں نے دیا ہے، اور بلکہ شیعوں کے ساتھ سنیوں کا بھی ڈونیشن شامل ہے. مجھے امید ہے کہ آگے بھی اللہ تعالیٰ ترقی عطا فرمائے گا. تو ماشاءاللہ ہم آپ کے نام کے ساتھ اہل بیت، وکیل اہل بیت جو ہے کافی عرصہ دیکھتے رہے، علامہ بھی ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں، ابھی آپ کو آیت اللہ بھی کہا جا رہا ہے، اس کی تھوڑی سی ہمیں وضاحت. میں اپنے آپ کو تو بالکل ادنا سا طالب علم سمجھتا ہوں حوزے کا، اور یہی میری انشاءاللہ آئیڈینٹی ہے. میرے والد صاحب قبلہ فرماتے تھے کہ وہ نام زیادہ پسند ہونا چاہیے جس کا تلقین میں ذکر ہوگا. جب میں مروں گا تو سخاوت حسین ابن عطا اللہ کہہ کے مجھے کہا جائے گا اسم فم. میری کبھی خواہش نہیں رہی کہ مجھے کوئی آیت اللہ کہے، علامہ کہے، ڈاکٹر کہے، مولانا کہے، حجت الاسلام والمسلمین کہے، حجت الاسلام کہے. میں نے کبھی یہ خواہش نہیں رکھی، نہ اسکالر کی. میں چھوٹا سا طالب علم ہوں، انشاءاللہ اسی طرح کام کرتا رہوں گا. باقی رہی بات وکیل اہل بیت کی، یہ اس وقت وکیل اہل بیت مجھے کہا جانے لگا جب کوئی اہل بیت کے خلاف ہونے والے جو اقدامات تھے اور جو اخبار یہاں نکلتے تھے اور یہاں پر ٹی وی چینل چلتے تھے، اور 10 محرم کو شادیاں ہوتی تھیں، یہی جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں سامنے 10 محرم کو شادی ہوئی تھی. تو اس وقت اس فقیر نے اخباروں میں لکھنا شروع کیا، جنہوں نے یزید کو رحمۃ اللہ علیہ لکھا تھا نعوذ باللہ، امام حسین علیہ السلام کو باغی لکھا تھا نعوذ باللہ. تو میں فقیر نے راتوں رات لگا کے اخباروں میں لکھا، ٹی وی چینلز پہ پروگرام کیے، مزدوریاں کر کے اخبار والوں کے پیسے دیے، ٹی وی والوں کو پیمنٹس کی. تو ظاہر ہے کہ میں نے جب اہل بیت کے لیے کام کیا تو آلموسٹ 94 میں مجھے وکیل اہل بیت کہا جانے لگا. مجھے کوئی شوق نہیں، مگر میں اہل بیت کا خادم ہوں، ڈٹ کے ان کی خدمت پہلے بھی کی ہے، پھر بھی کروں گا. وہی شہر جس میں کل تک شیعہ کو کافر کہا جاتا تھا، کسی کی جرت نہیں ہے کہ شیعہ کو اب کوئی کافر کہے. شیعہ سنی اتحاد قائم کیا، شیعہ اتحاد قائم کیا، غلط فہمیاں دور کیں، شیعہ اور سنی مساجد کے اندر ایک دوسرے کے احترام کا درس دیا. اللہ نے کافی حد تک کامیاب کیا ہے. دعا فرمائیں کہ بغیر ٹائٹلز کے اللہ مجھے اور توفیق دے، میں اس دنیا سے جانے سے پہلے کوئی مزید اچھا کام کر جاؤں. یہ تو آپ بھی گواہ ہیں جناب علامہ صاحب کہ میں شروع دن سے جو کچھ آپ فرما رہے ہیں اس کا آئی وٹنس بھی ہوں. بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب سینٹر خریدا تھا تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جب جعفری صاحب اور دوسرے آپ کے وکلاء حضرات یہاں پہ موجود تھے تو ان میں بھی تھا. جی. تو یہاں پہ بڑا سخت اس وقت لگ رہا تھا کہ آپ کو پاؤں جمنا. تو ابھی آپ نے جو یہ اچیومنٹ جو آپ نے حاصل کی ہیں، اب کیا دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ شیعہ سنی کا اتحاد جو ہے یہ بڑھتا رہے گا؟ دوسری طرف سے بھی اسی طرح تحمل کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے جیسے آپ اس چیز کو پھیلا رہے ہیں؟ شکر خدا ہے، اللہ کریم آپ کو جزا دے. مجھے یاد ہے پہلا لیٹر پیڈ بھی آپ نے چھپایا تھا اور آپ نے بڑا ہمارا تعاون کیا، اور انشاءاللہ آئندہ بھی امید رکھتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ تعاون فرماتے رہیں. جعفری صاحب کا بھی شکریہ، ساجد جعفری صاحب اللہ انہیں صحت دے، انہوں نے بڑا تعاون کیا. جو میری ٹیم میرے ساتھ تھی آج بھی ہے، اللہ انہیں سلامت رکھے. میری بڑی مدد کی ہے آپ سب نے. میرے لیے تو کوئی مشکل نظر نہیں آ رہی، میں تو پازیٹیو آدمی ہوں. شکر خدا ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس وقت کامیابی ہے، بالکل کامیابی ہے. مزید بھی میں امید رکھتا ہوں کہ کامیابی ہوگی. تھوڑی بہت تو تکلیفیں آپ کو پتہ ہے ہوتی رہتی ہیں، حسد وغیرہ بھی لوگ کرتے رہتے ہیں، اور باہر سے بھی لوگ پتھر پھینکتے رہتے ہیں. دعا فرمائیں کہ اللہ ان سے ہمیں بچا کے رکھے. آپ کو کوئی مشکلات اس کا مطلب درپیش ضرور ہے اندرونی طور پر یا دوسری طرف سے؟ میرے خیال میں مشکلات نہ ہونے کے برابر ہیں، زیادہ تر تو راحتیں ہی ہیں. اللہ کا بڑا احسان ہے. ہم شیعہ قوم بھی تعاون کر رہی ہے، اہل سنت بھائی بھی تعاون کر رہے ہیں، گورنمنٹ بھی یہاں کی اچھی ہے، اتھارٹیز بھی یہاں کی بہت اچھی ہیں، صحافی بہت اچھے ہیں، ٹی وی اینکرز بڑے اچھے ہیں، یہاں کے صحافی بہت اچھے ہیں. میرے خیال میں تو کریم ہے جو ہمارے ملک سے نکل کے آ گئی ہے، بلکہ دوسرے ملکوں کے لوگ بھی اچھے ہیں. باقی میرا نہیں خیال کہ کوئی بندہ بھی ایسا ہو جس کو دنیا میں
मुश्किलात ना हो। मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते थे अद्दाहरु यौमान यौमुन लक व यौमुन अलैक, ज़माने की दो किस्में हैं, आधा तुम्हारे हक में होगा, आधा तुम्हारे खिलाफ होगा। मेरे ख्याल में आधे से ज़्यादा हमारे हक में है, बल्कि बहुत हमारे हक में है। तो अगर आधे भी मुखालिफ हो जाएं फिर भी हम विनर हैं। मैं समझता हूँ 99.9% शिया और सुन्नी ने साथ दिया है। मैं बड़ा ममनून हूँ। और अगर कोई इक्का दुक्का मुखालिफ भी हैं तो शायद बेचारे गलत फहमियों की वजह से, हसद की बजाय मैं कहूँगा शायद गलत फहमी हो। मैं फ़कीर से क्या हसद करना है, मैं तो एक गरीब सा आदमी हूँ। हसद तो करें जो मिलियनर हो। क्योंकि ये तो कोई दुकान नहीं है, जी हाँ, नहीं है, किसी को दीन का काम है, दीन का काम है, आप फरोग का काम कर रहे हैं। मेरे ख्याल में हसद नहीं होगा, गलत फहमी होगी। लोग भड़का देते हैं, अल्लाह ताला उनको हिदायत फरमाए। इसका जवाब नहीं देना। नहीं, खुदा न खास्ता जो मेरी कौम के जो अफराद हैं मुझे जो गालियाँ भी दें मैं उनको दुआएं दूंगा। मैंने ज़िंदगी में सैयद साहब न किसी की शिकायत की है, न किसी की शिकायत करूंगा, न किसी के ख़िलाफ़ बोलता हूँ, न किसी को गाली दी है, न किसी को गाली दूंगा, न किसी के ख़िलाफ़ लिखा है, न किसी के ख़िलाफ़ लिखूंगा। मेरे अंदर ये चीज़ नहीं, मेरा मनसब ये नहीं है कि मैं इन चीज़ों में जाऊँ। मेरा अपना ख्याल ये है कि अगर कोई गलत फहमी में है तो इंशाअल्लाह उनकी गलत फहमी दूर हो जाएगी। मैं उनके लिए दुआ करता हूँ। हमारी कौम के हैं बेचारे, अहले सुन्नत में तो मुझे नज़र ही कोई चीज़ नहीं आ रही, अहले तशय्युअ में कोई इक्का दुक्का अगर हैं भी सही तो अल्लाह करेगा वो इंशाअल्लाह गलत फहमी दूर करके, हमारे भाई हैं, हमारे बच्चे हैं, अल्लाह करीम उनकी ज़िंदगी दराज करे और उनकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे। मैं देखता हूँ यहाँ पे अल्लामा साहब के आपके जो साथी हैं बड़े आपके साथ सिंसियर हैं, बहुत टीम उसी वक्त से चली आ रही है, काफ़ी लोग हैं तो आपकी काफ़ी हेल्प करते हैं। शुक्र खुदा है जो मेरी टीम है, मैं इस पे फ़ख्र करता हूँ। मेरे भाइयों ने, मेरे बुज़ुर्गों ने, मेरे बच्चों ने, मेरे अजीज़ों ने, मेरी माँ बहनों बेटियों ने जो इस प्रोजेक्ट में मेरा साथ दिया अल मेहदी सेंटर में, मैं इनका एक एक का शुक्रिया उम्र भर अदा करूँ तो हक नहीं अदा कर सकता हूँ। मेरे साथ बहुत लोग वफ़ादार हैं। पूरे अमेरिका के जो मोमिनीन हैं शिया मेरे बड़े वफ़ादार हैं, बड़ी मेरी इज़्ज़त करते हैं, तकरीम करते हैं। मैं उनका बेहद शुक्रगुज़ार हूँ। मैं जिस काबिल भी नहीं हूँ वो मुझे उस काबिल समझते हैं। अल्लाह मेरी और इज़्ज़त रखे, अल्लाह मुझे और ख़िदमत की तौफ़ीक अता फ़रमाए। मुझसे जो हो सका है मैंने दीनदारी के साथ खिदमत की है, अपनी कौम की मज़ीद भी करूँगा। सुन्नी भाई बहन भी जितने मेरे हैं बड़ा एहतराम करते हैं, मैं उनका भी शुक्रगुज़ार हूँ। मेरे ख़्याल में अमेरिका में जो इज़्ज़त अल्लाह ने मुझे दी है, मैं बाकी मानदा ज़िंदगी अल्लाह की ज़ात का शुक्र और अपनी कौम का शुक्रिया अदा करता रहूँ तो मैं हक़ अदा नहीं कर सकता। आप तायद किस किस की करते हैं? मैं सबकी तायद करता हूँ। मेरी नज़र में सिर्फ जो आले मोहम्मद के दुश्मन हैं उनके मैं बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ। मेरा ज़ीरो टॉलरेंस है। जो सेक्टेरियनिज़म वाले हैं, शिया और सुन्नी को आपस में लड़ाने वाले हैं, मैं उनके ख़िलाफ़ हूँ। जो शिया को आपस में लड़ाने वाले हैं मैं उनके ख़िलाफ़ हूँ। मैं दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ हूँ। मैं अमन पसंदों की हिमायत करता हूँ। मैं शिया और सुन्नी की हिमायत करता हूँ। मैं उन क्रिश्चियन की भी, ज्यूज़ की भी हिमायत करता हूँ जो टेरर की हद तक ना हो। मैं बल्कि हिंदुओं और सिखों के साथ भी इजहार वाबस्ती करता हूँ अगर वो अमन पसंद हो और वो टेरर पर यकीन न रखते हों। मेरे इंसानियत की कदर मेरा नारा है। और आपको सवाल तो ये करना चाहिए कि मुझे तायद किस किस की है, मैं किसकी तायद करता हूँ। मैं तो बहुत रेयर हूँ मुखालफत में। दहशतगर्दों का मैं मुखालिफ हूँ, गालियाँ देने वालों का मैं मुखालिफ हूँ, मैं झूठों का मुखालिफ हूँ, जालिमों का मुखालिफ हूँ, कातिलों का मुखालिफ हूँ, मुतासिबों का मुखालिफ हूँ। को दूसरी तरफ ले जाते हैं कि आपको किस किस जी हाँ, वो मेरे ख्याल में ये सब मुझे अल्लाह के फजल करम से सबसे पहले तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल का मैं जितना शुक्रिया अदा करूँ, मुझे अल्लाह की तायद हासिल है। अगर अल्लाह की तायद हासिल न होती, सैयद साहब आप आगाह है, ये सेंटर यहाँ बन नहीं सकता था। जिन हालात में मैंने सेंटर बनाया है, जितना तासुब शिया कौम के ख़िलाफ़ था, उस ज़माने में यजीद को रज़ी अल्लाह अन्हो लिखा जाता था, उस वक्त रहमतुल्लाह अलैह यजीद को लिखा जाता था, इमाम हुसैन को बागी लिखा जाता था, शियों के ख़िलाफ़ यहाँ कार्टून बनाए जाते थे। बहुत दिक्कत थी। ये तायद एज़दी ना होती तो ये सेंटर कायम ना होता। मुझे हुजूर पाक की तायद हासिल है क्योंकि मैं सच्चा और पक्का आशिक रसूल हूँ। उनकी अगर तायद ना होती तो सदके या रसूल अल्लाह वाले मेरे दोस्त न बनते।
मुझे मौला अली अलैहिस्सलाम की तायीद हासिल है, वरना अली वलीउल्लाह वाले मुझ फ़कीर की तायीद न करते। मुझे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तायीद हासिल है, क्योंकि मैं ख़ुद भी अज़ादार हूँ, मातमी हूँ, नोहा ख़ान हूँ और नोहा ख़ानों का खाके पा भी हूँ। अहले बैत की मुझे सपोर्ट है, तमाम मराजे की मुझे सपोर्ट है, नजफ़ और कुम के जितने मराजे किराम हैं सबकी मुझे सपोर्ट है, नजफ़ के हौज़े की मुझे सपोर्ट है, कुम के हौज़े की मुझे सपोर्ट है, और दुनिया भर के शिया उलमा जो बाकिरदार बाअमल हैं सही उल अक़ीदा, उन सब की मुझे सपोर्ट है, और जो मुहिबान अहले बैत उलमा और अवाम हैं अहले सुन्नत के, उनकी भी मुझे सपोर्ट है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मेरी सहाफ़ी बिरादरी बहुत मेरे साथ है, क्योंकि मैं ख़ुद भी सहाफ़ी हूँ, और इसी तरीके से मैंने महसूस किया है कि मैंने मोहब्बतें बांटी हैं और मैं तकरीबन मोहब्बतें ही मैंने वसूल की। बड़ी मेहरबानी पाक वतन की तरफ से, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार मैं आपका हूँ। शुक्रगुजार हमारे नाज़रीन भी जो मालूमात आपने दी हैं, उससे उम्मीद है कि आप आइंदा भी हमें मुस्तफ़ीद फरमाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह सलामत आपने रखे। कोई ख़ास पैगाम अगर देना चाहें आप, कोई चीज़ रह गई हो तो इसमें हम आपका। मेरा पैगाम ये है कि इस वक्त इराक़ के हालात काफ़ी ख़राब है। एक तो पाक वतन टीवी के जो तमाम व्यूअर्स हैं वो दुआ फरमाएं, अलमहदी टीवी वाले भी दुआ करें, जिस जिस तक ये पैगाम सोशल मीडिया के ज़रिए सैयद जाहिद शहबाज साहब के ज़रिए पहुँचे, सब दुआ करें, आप भी दुआ करें, अल्लाह इराक़ के हालात को सुधार दे। मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि शियायान अली अलैहिस्सलाम को बहुत होशियार रहना होगा, इसलिए कि दाइश की नाकामी के बाद आयतुल्लाह अल उज़्मा सैयद अली सिस्तानी की खिदमत में जब लोग गए, उन्होंने उलमा ने मुबारकबाद पेश की तो आप परेशान नज़र आए। उलमा ने कहा कि आपको इतनी बड़ी फतह मिली है, आपको तो खुश आना चाहिए। आपने फरमाया मेरी इस वक्त सिचुएशन वो है जैसे हमारे मीर्ज़ा शिराज़ी की थी, जब उन्होंने बरतानिया के ख़िलाफ़ शुर्ब तुतुन की हुर्मत का फतवा दिया, तंबाकू नोशी की हुर्मत का, तो तंबाकू वाली कंपनी तो बंद हो गई और बरतानिया हार गया ईरान में, मगर उसी दिन से मरजाइयत के ख़िलाफ़ बरतानिया शुरू हो गया। तो कहते हैं दाइश तो हार गई, मगर अब वो मरजाइयत के ख़िलाफ़ खड़े होंगे। मैं अमेरिका और कनाडा में मुकीम अपने शिया भाई बहनों से कहूँगा कि आजकल ये जो इराक़ के हालात चल रहे हैं, ये मरजाइयत की मुखालफत है, और लोकल उलमा जैसे मुझ फ़कीर की भी थोड़ी बहुत अगर मुखालफत हो रही है तो इसलिए कि मेरा ताल्लुक़ मरजाइयत से है। अगर मैं मराजे के करीब ना होता तो मेरी कोई मुखालफत ना होती। अपने उलमा की मुखालफत ना करें, इसलिए कि एजेंसियाँ ग्लोबल लेवल पे ये चाहती हैं कि शिया आपस में लड़ जाएं, ना अकायद में उलझें, एक दूसरे का एहतराम करें, बर्दाश्त करें, ताकि ये कौम आगे बढ़ सके। बहुत मेहरबानी जनाब, शुक्रिया। बिस्मिल्लाह। हमारे लिए भी दुआ फरमाइए। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े में। शुक्रिया, तशरीफ़ लाए।